So hey everyone, in today's video we will discuss the PYQs of 2022 in CUET PG. It is for economics honors student or those who wanted to be appear in economics paper for PG. So the first question is, in the bandwagon effect, demand for a good rises, keeping prices and other things constant. In the bandwagon effect, people follow the trends when a few people use some goods, and then other people in the society also start to use those goods. The demand for goods rises and it makes the demand more elastic. देखो ये अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये इफ़ेक्ट ये बताता है कि कोई एक पर्सन अगर यूज़ कर रहा है तो फिर हम भी उसको यूज़ करने लगते हैं। तो मतलब है ना कि तुम्हारे सामने वाला अगर वो चीज़ यूज़ कर रहा है तो तुम भी यूज़ करोगे उसको देख के। इससे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इलास्टिक होगी डिमांड इससे और ज़्यादा। ठीक है। और ये कुर्नोट मॉडल क्या है? कुर्नोट डुओपोली मॉडल भी आता है। कुर्नोट मॉडल है कि each firm takes quantity as a strategic variable and the resulting total output determines the market price. ठीक है। The Goodnote model, each firm takes quantity as a strategic variable and the resulting total output determines the market price. However, there exists an alternative model, the Bertrand model, The Goodnote model, each firm takes quantity as a strategic variable and the resulting total output determines the market price. Oh, ये टोटल क्वांटिटी को वेरिएबल लेते हैं और फिर जो आउटपुट आता है, आउटपुट डिटरमाइंस द मार्केट प्राइस। अच्छा, टोटल क्वांटिटी को ये लोग वेरिएबल लेते हैं, इनकी टोटल क्वांटिटी चेंज हो सकता है, उसके बाद जो आउटपुट जो जनरेट होता है उसको हम मार्केट प्राइस लेते हैं। However, there exists an alternative model, the Bertrand model, where firms take price as a strategic variable, with each firm selecting a price and standing ready to meet all the demand it faces, given the prices chosen by all other firms. However, unlike Coordinate competition, each firm faces a separate demand based on the price charged by its rivals. Coordinate मॉडल वो होता है जो कि उसका जो कंपटीटर है उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस चार्ज करता है। तीसरा क्वेश्चन था, इफ़ द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज़ इनइलास्टिक as the prices decreases, the revenues earned by producer decreases. Demand for agricultural product is inelastic as the price inelastic है agricultural product का demand, तो price decreases, the revenue earned by producers decreases. Price decreases, तो revenue earned by producers will also decrease. द एंजल कर्व तुमने पढ़ा होगा। एंजल कर्व ऐसे बनता है, किसी और वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि एंजल कर्व क्या होता है। तो अभी देखते हैं हम बस ये कि एंजल कर्व फॉर अ गिवन गुड इज नेगेटिवली स्लोप्ड एज इनकम इंक्रीजेज, डिमांड फॉर द गुड फॉल्स। गिवन गुड्स के लिए एंजल कर्व क्या होता है कि नेगेटिव स्लोप होता है गिवन गुड के लिए। अब गिवन गुड होता है, क्लब गुड होता है, पब्लिक गुड होता है, प्राइवेट गुड होता है, लग्जूरियस गुड होता है। हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे कि इस सारे गुड्स में डिफरेंस क्या होता है सब में। ठीक है। तो अभी के लिए मैं तुमको बस इतना बता दूं कि द एंजल कर्व फॉर अ गिवन गुड इज नेगेटिवली स्लोप्ड एज द इनकम इंक्रीजेज, डिमांड फॉर द गुड फॉल्स। इनवर्स रिलेशनशिप भैया, अगर पता है तुमको, ये तुमको तो पता ही होगा। सप्लाई कब होता है अपना पॉजिटिवली स्लोप, डिमांड कब होता है नेगेटिवली स्लोप। नेगेटिवली स्लोप का मतलब ही हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग, और डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ही हुआ इनवर्स रिलेशनशिप। समझ गए ना तुम? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ प्राइस लीडरशिप बाय द dominant firm, all the firms in the purely oligopolistic industry will always produce their best level of output always because they face residual demand. समझे?
The golden rule of saving is the level of saving. The golden rule of saving is the level of savings rate where the consumption is maximized at the steady state. The golden rule of saving is the level of saving rate where the consumption is maximized at the steady state. The optimum level of output for a perfectly competitive firm. द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर अ परफेक्टली कम्पिटेटिव फर्म. परफेक्टली कम्पिटेटिव मतलब बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, ठीक है. द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर अ परफेक्टली कम्पिटेटिव फर्म is given by the point where the marginal revenue equals the marginal cost is rising. Marginal revenue equals the marginal cost and marginal cost is rising. बच्चे अभी तुमको perfectly मार्केट होता है. AR is equals to MR, AC is equals to MC. उसके बाद इधर से तुम यार ऐसे करते हैं, ठीक है. हाँ सॉरी इधर से ऐसे AR इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू MC, AR MR, AR के डबल रेट से MR गिरता है. अल्फा प्लस बीटा द प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस डिग्री 1 द स्लो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. अरे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल समझ लो, 1 आ गया तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, उससे ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और एक से कम है नेगेटिवली डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. ठीक है. अल्फा प्लस बीटा उसका पावर जो कॉप डगलस फंक्शन जैसा होता है कुछ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस. अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस मीन कि 1 माइनस आर स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और कोफिशिएंट ही निकालते थे ना, कि क्वार्टाइल निकालते थे यार, क्वार्टाइल डेविएशन निकालते थे. Q3 प्लस Q1 बाई Q3 माइनस Q1. तुमको याद होगा, मैंने इससे नेक्स्ट वीडियो मतलब 2024 वाले में साथ पढ़ाया था तुम लोगों को PYQ एनालिसिस में. द कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस 1 माइनस आर स्क्वायर. तुम ये रिग्रेशन फंक्शन मत समझ लेना, ये समझ गए. द रिग्रेशन का अलग होता है ना बेटा. देखो रिग्रेशन वाला होता है कि y x ऑन y, हाँ वैल्यू अल्फ़ा x ऑन y, इसका वैसा वाला होता है x ऑन y. तो x की वैल्यू हम y के टर्म में निकालते थे, y की वैल्यू हम x के टर्म में निकालते थे, और फिर क्या करते थे, दोनों का वैल्यू निकाला और x के टर्म में y के टर्म में, और x और y की वैल्यू दिया रहता था वो हम पुट कर देते थे, और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल निकालते थे. यार याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, पढ़ के बताऊंगी. द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 4 a प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5. ये होता है n प्लस 1 का वैल्यू होता है ना बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाला जो होता था a प्लस बी टू द पावर n. तो हम n प्लस 1 लेते थे, यानी कि जितना हमको दिया हुआ है ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, मान लो ऐसे दिया हुआ है होल स्क्वायर यानी कि 2 है, तो 2 यहाँ हमारा n हो गया, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3. तो वो हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है. अब देखो हैबलर्स थ्योरी क्या कहता है. हैबलर्स थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कोस्ट. अपॉर्चुनिटी कोस्ट मतलब हो गया कि तुमको एक गुड्स को त्याग देने के बाद जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि तुम देखो, तुम मार्केट में गए थे एप्पल खरीदने, तुम्हें सेम कॉस्ट पे तुमको बनाना भी मिल रहा था, तो तुमने बनाना खरीदा और उसके लिए जो कॉस्ट लगा, यानी कि तुमने सेक्रीफाइस किया ना एप्पल का बनाना के लिए, तो वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया. इज द हैबलर्स थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंडीड रिप्रेजेंटेड बाय द PPC, यानी कि प्राइस प्रोपेंसिटी कर्व. The PPC shows the maximum possibility output combination of two goods that an economy can produce given its resources and technology. The slope of price propensity curve at any point represent the opportunity cost of producing one good in terms of other. Hablers extended the idea of opportunity cost in international trade, emphasizing that ट्रेड अकर्स बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज. तुमने सुना होगा एब्सोल्यूट एडवांटेज, पहले आया था एब्सोल्यूट एडवांटेज, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज, फिर हैबलर्स अपॉर्चुनिटी, फिर
हेक्सियस ओलिन, फिर उसका पैराडॉक्स आया था ये लियोंटिफ पैराडॉक्स। तो अब एब्सोल्यूट एडवांटेज दिया था किसने, याद होगा तुम लोगों को, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपने बुक में दिया था इन 1776 एन इंक्वायरी